Good morning, students. This is Ankita Keshwani here, your computer teacher. So, students, how are you? I hope all are you fine. Students, as you know, in our last video lecture, we have started our chapter number 3 and we have seen that how to create a folder, how to copy a folder, how to move a folder from one place to another place, and how to search a file and how to delete a file. Okay, so that are the topic we have already covered in our last video, in our previous videos lecture. Okay, so today I will start our next topic, that is how to restore a file and folder from the recycle bin. Understand? And that topic I have already covered in our last video, but it is our next topic, so I have discussing that topic again. Okay, so see, the restoring a file and folder. Restoring means after deleting a file from your uh, folder, from your laptop, you can download, you can restore that files and folders from recycle bins, because sometimes maybe there may be a chances you delete any file, you deleted any file accidentally. Okay, so there is a way to restore that file. Understand? So the file or folder which are deleted can be restored to their original location. Okay, कहाँ पे ये restored होती है? To their original locations. Understand? From where you have deleted the file, only on that location you can download, you can restore that file. Understand? जहाँ से आपने वो फाइल डिलीट की है, उसी लोकेशन पे आप उस फाइल को रीस्टोर करेंगे. ठीक है, मतलब जब आप रीस्टोर करते हैं रिसाइकल बिन से, वो फाइल अपने ओरिजिनल लोकेशन पे आके रीस्टोर होती है, अपने ओरिजिनल लोकेशन पे आके सेव होती है. अंडरस्टैंड? नाउ सी, to restore a deleted file from the recycle bin, we should follow the following steps. Okay, so the first step is that open the recycle bin folder. First you have to open the recycle bin folder. Okay, so let's try it. You can see, wait, what is happening? You can see this is a recycle bin folder and I am opening this folder by double clicking on it. Okay, so you can see the recycle bin folder. It is your recycle bin folder, and here wait na. Wait a second, students. Here you can see the second step. Select the file and folder you want to restore. Click on the restore this item option on the toolbar, or right click on the file and folder you wish to restore. Select the restore option from the context menu. Okay, so you can see this file is selected folder, and here you can see on the top restore this item option, and here you can see empty the recycle bin option. By clicking on this empty the recycle bin option, all the restore recycle bin folder is empty, it will get empty. Okay, so if you want to restore the selected files, okay, जो selected files आपको restore करनी है, वो आप पहले first you have to select the files, then you have to click on the restore the selected items on the top. You can see here. So it is your recycle bin window. Okay, from here if I want to restore class 5th one folder, and that class 4th is syllabus deduction and this Abhinav Shukla computer, ये तीन है folders. ये एक folder है, दो PDF files है. If I want to restore that items,
then you can see the restore the selected items. So there is a two way to restore any file from the recycle bin. Understand? First you have to select the files, and there you can directly click on this option on the top, which is given on the top left top corner. Okay, you can see at the left top corner restore the selected items. So move the, देखो जब यहाँ पे मैंने माउस रख रही तो इसकी डिटेल में आ रहा है, move the selected items from the recycle bin to their original location on your computer, to their original locations on your computer. Okay, तो इसे रीस्टोर करने से पहले फर्स्ट वी हैव टू चेक, हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी ओरिजिनल लोकेशन है वो क्या है. तो इस पर चेक करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली डबल क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा, या फिर इस पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे. ठीक है, सो यू कैन सी हियर ओरिजिन सिलेबस, ये सिलेबस के अंदर है क्लास 4A. तो बस इसका पूरा पाथ नहीं दिखेगा आपको, मेन इसका ओरिजिन पता चलेगा किस फोल्डर के अंदर है. तो मुझे यहाँ पे लिख रहा है सिलेबस. अब ये मुझे पता है कि ये क्लास 4A की फाइल है, तो मेरे कंप्यूटर में क्लास A का क्लास 4 का अलग से फोल्डर है, उसके अंदर एक सिलेबस नाम का फोल्डर है, ये उसमें होगी, ये फाइल उसमें होगी. ओके, तो हम जाके देख लेते हैं एक बार क्लास 4 के फोल्डर पे, क्योंकि जब हम रीस्टोर करेंगे तो हमको वहाँ पे चेक भी करना है. ये क्लास 4 का फोल्डर, यू कैन सी हियर क्लास 4, एंड यहाँ पे सिलेबस है. ठीक है, सिलेबस में कहीं पे भी क्लास 4B सिलेबस डिडक्शन 4A सिलेबस डिडक्शन 4B और सिलेबस डिडक्शन 4A सिलेबस डिडक्शन. ओके, यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स है ऑलरेडी क्लास 4A सिलेबस डिडक्शन के नाम से. अब हम देखते हैं रिसाइकल बीन पे जाके जो हमारी फाइल थी जिसे हमें रीस्टोर करना था, क्लास 4A सिलेबस डिडक्शन. ओके, मैं इसे जा रही हूँ, इसे रीस्टोर पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे इस नाम से हमारी वहाँ पे और भी फाइल है और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं इस फाइल को रीस्टोर आपको नहीं करके बताती हूँ. अभिनव शुक्ला, इसका पाथ देख लेते हैं एक मिनट. इस फाइल को हम लोग रीस्टोर करेंगे, ये है आपकी ओरिजिन कंप्यूटर के अंदर है. ठीक है, क्लास 4A कंप्यूटर के अंदर है. ठीक है, यू कैन सी हियर क्लास 4 में कंप्यूटर के अंदर इतनी सारी फाइल है, इसमें कहीं पे भी आपको अभिनव शुक्ला की फाइल नहीं दिख रही है. ठीक है, PDF फाइल नहीं दिख रही है. अब देखना, इट इज रिसाइकल बीन, अभिनव शुक्ला की फाइल है. आई एम राइट क्लिकिंग ऑन इट. पहले मैं आपको टॉप से करके बताती हूँ. ये फाइल सेलेक्टेड है, यू कैन सी एट द टॉप आई एम सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन रीस्टोर द सेलेक्टेड आइटम. मैंने यहाँ जैसे ही क्लिक किया ये रीस्टोर हो गई. ठीक है, अब ये फाइल यू कैन सी दैट फाइल इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस रिसाइकल बीन. ओके, रिसाइकल बीन फोल्डर से ये फाइल जो थी हमने रीस्टोर की वो रिमूव हो चुकी है. एंड नाउ आई कैन चेक ऑन दैट फोल्डर. यू कैन सी अभिनव शुक्ला की फाइल जो क्लास 4 कंप्यूटर के अंदर नहीं थी पहले, वो यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि वो पहले मैंने यहीं से डिलीट की थी, इसलिए वो यहाँ पे से रीस्टोर होके, मतलब यहाँ यहीं पे अपने ओरिजिनल लोकेशन पे ही रीस्टोर हुई है. देखना, मैं इसे डिलीट कर रही हूँ. ये फाइल मैंने यहाँ से डिलीट की, कहाँ से डिलीट की, क्लास 4 कंप्यूटर से डिलीट की. ओके, एंड नाउ हियर यू कैन सी अभिनव शुक्ला की फाइल फिर से रीस्टोर रिसाइकल बीन में आ चुकी है. मैं इसे राइट क्लिक करके रीस्टोर करके बताती हूँ. ठीक है, पहले मैंने सेलेक्ट किया था, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ऊपर रीस्टोर द सेलेक्टेड आइटम्स वाला ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है, फ्रॉम हियर यू कैन डायरेक्टली राइट क्लिक ऑन दैट फोल्डर और फाइल एनीथिंग यू कैन विच यू वांट टू रीस्टोर. you have to first right click on this file and that file, and after that you have to click on restore option. As you click on restore option, you can see the file is removed from this location. Okay, and we will again check the computer folder and you can see this file is restored here. Okay, in its original place, in its original locations. Okay, understand? So this is about how to restore any file and folder. So there is a two way to restore any file by selecting first you can directly select the file and directly you can click on the restore the selected items, or you can
just right click on any file and folders and image and video, whatever you want to restore. You have to first right click on that file and folder, and after that there is a context menu will open, in which on the first row you can see restore option. So you have to click on that to restore any file, to restore any folder, to restore any video, image, anything, whatever you want to restore. Understand? Now come on to the back, come back to the our book, page number 29. So this is about how to restore a file and folder and from the recycle bin. You can also click the restore all items button at the top to restore all the files to their original places. Make sure that not even a single file is selected then. Similarly, you can click the empty the recycle bin button to delete all the files permanently from your computer system. Here you can see there is two more options are given. That is, first one is empty recycle bin option. Okay, as you click on this option, empty recycle bin, these files, this video files, these folders, this PDF file, these images will permanently deleted from your computer system. Okay, empty recycle bin, अगर रीस्टोर यहाँ से एम्प्टी करोगे मतलब कि ये हमेशा के लिए परमानेंटली ये सारी फाइल्स आपके कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी. अंडरस्टैंड? ठीक है. और रीस्टोर का मतलब होता है कि वो रिसाइकल बीन से बाहर आके आपके ओरिजिनल प्लेसेस पे आएगी. रीस्टोर ऑल आइटम्स पे अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे के सारे आइटम्स जो है अपनी अपनी लोकेशंस में, जो भी इनके ओरिजिनल लोकेशंस होंगे, ठीक है, जो वहाँ से भी आए हैं, इनका सोर्स जो होगा, ठीक है, ये वहाँ पे जाके क्या होंगे, रीस्टोर होंगे. अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके. So this is about how to how to restore any file from the recycle bin, how to restore all items at a single time from the recycle bin, and how to delete all the files and folders from the recycle bin permanently. So for deleting any file and folder from the recycle bin permanently, you have to just click on empty recycle bin option. Okay. Either you can also select right click on any file and folder and click on delete option to delete this file and folder permanently. You can see a message will pop up, that is, are you sure you want to permanently delete this folder, because you are deleting this file from the restore option. Okay, from the recycle bin. So as you deleting a file from the recycle bin, this file will be deleted from here permanently. So that's why it is asking to you once again that you are sure to delete this file from the delete this file permanently from your computer system. So yes, click on yes. Okay, so this is deleted, and this is about how to restore a file and folder from the recycle bin. Okay, so this topic is completed. Now see finding a file and folder. Okay, finding and a file and folder. So before starting this topic, let's see some facts. Let's know more. To select a consecutive group of files, click on the first file, hold down the shift key and click the last file. Okay. If you want to select a consecutive group of files, okay, जैसे कि ये सारी कंप्यूटर फोल्डर पे मैं ये सारी फाइल्स को सेलेक्ट करना चाहती हूँ लाइन से, बस ये लास्ट मतलब फर्स्ट रो की मैं सारी फाइल्स सेलेक्ट करना चाहती हूँ. ठीक है, तो क्या करना होगा, फर्स्ट आई हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट फाइल, देन क्लिक मैं यहाँ कीबोर्ड में शिफ्ट बटन प्रेस कर रही हूँ, और जैसे ही मैंने शिफ्ट बटन प्रेस किया है, अब मैं जाके ये वाली जो इस रो की लास्ट फाइल है उसे सेलेक्ट किया. ठीक है, जैसे ही लास्ट फाइल को सेलेक्ट किया, यू कैन सी ऑल द फाइल्स ऑफ द फर्स्ट रो विल ऑटोमेटिकली गेट सेलेक्टेड. ओके, ये सारी फाइलें अपने आप सेलेक्ट हो चुकी है.
अंडरस्टैंड, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आप सारी फाइलें सेलेक्ट कर सकते हैं, सारी मतलब कि जहाँ से जहाँ तक आपको कंजिक्यूटिव फाइल्स चाहिए एक सीरीज तक की, हाँ मुझे यहाँ से यहाँ तक की फाइल्स चाहिए, ये नहीं चाहिए। जैसे ये लास्ट की 4 आपको नहीं चाहिए थी, लाइन से नहीं चाहिए थी, ऊपर की लाइन से आपको चाहिए थी, कंजिक्यूटिव फाइल्स चाहिए थी। अंडरस्टैंड। अब तो इसलिए आपने किया। अगर आपको सारी फाइल सेलेक्ट करनी है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल+A, कंट्रोल और A, कैपिटल A, मतलब को सेलेक्ट करेंगे तो ये सारी फाइलें सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखेंगे फिर से, टू सेलेक्ट द नॉन कंजिक्यूटिव फाइल्स एंड फोल्डर्स प्रेस and hold down the control key and click on the files to be copied. Okay, let's see here. If you want to select non-consecutive files, that means if you want to select any file randomly, ओके जस्ट इसको सेलेक्ट किया फर्स्ट फाइल को, उसके बाद मुझे बुक 4.1 को PDF सेलेक्ट करना है, तो मैं अभी कंट्रोल बटन अपने कंप्यूटर पे अपने कीबोर्ड पे प्रेस किया हुआ है मैंने, और मैं इसे सेलेक्ट करूँगी। अब देख रहे हो आप, ये फाइल ब्लू हो चुकी है, यहाँ पे से ब्लू एक स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्स बन चुका है, और यहाँ पे भी, और ये अब इतनी फाइलें सेलेक्ट हो चुकी है। अब मैं इसे कट कॉपी पेस्ट जो भी मुझे करना है मैं इनके साथ कर सकती हूँ। ठीक है, सो फ्रॉम this is the way how you can randomly select any file, how you can consecutively select any files and folders from your computer system. Understand everyone? So this is about new fact. Let's know more. Windows allows you to paste the sticky notes on your computer screen. So ये Windows 7 का है जिसमें sticky notes के options available होते हैं. You can just paste on it your computer screen. Here you can see press shift plus delete to delete files and folders permanently. ठीक है, जो भी files and folders, if you want to delete that files and folders permanently from your system, you have to just click on the shift plus delete. First you have to select that file and folder, then from your computer, then your keyboard, from your keyboard you have to press shift and delete option together. Understand? And that is the way you can delete any file and folders permanently. Understand everyone? Let's know more. The calculator of Windows 7 provides you a more advanced method to calculate. To change the mode of calculator, click on the View menu and select the desired mode from the drop-down list. So, in my laptop, as you know, Windows 10 is installed. So, this is a feature of Windows 7. Understand? Now, see the next topic, finding a file and folder. Windows offers a number of ways to find files and folders. Search box offers the most direct way to locate a file. Use search box if you are looking for common file types, if you remember all or part of the name of the file or folder you want to find. Third, you know the date when you last modified a file. Okay. टू सर्च एंड फाइल और फोल्डर, तो आप कोई भी कॉमन फाइल्स जो आपकी होंगी उसको आप सर्च कर सकते हैं. इवन टू सर्च एनी फाइल देयर इज नो नीड टू नो द फुल नेम ऑफ दैट फाइल एंड फोल्डर. ओके, अगर आपको उस फाइल एंड फोल्डर का कुछ हाफ पार्ट नेम भी, कुछ पार्ट्स ही याद है, उसका बस स्टार्टिंग नेम ही याद है, स्टार्टिंग के 2 लेटर्स ही बस पता है, तो भी आप उस फाइल को सर्च कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? You know the date when you last modified it a file. अगर आपको लास्ट मॉडिफाइड किसी डेट पता है कि हाँ मैंने इस फाइल को लास्ट में कब यूज़ किया था, कब इसमें कुछ चेंजेस किया था, कब इस फाइल को मॉडिफाइड किया था, then you can use that date also to search that file. Understand? So see the next topic, next line, to search file and folder. Click on the start button. You will find the search box located at the bottom of left pane. So you can see as in Windows 7, here you can see on figure 3.9 using search option. First ये start button है,
जैसे ही इस पे क्लिक किया यू विल फाइंड द सर्च बॉक्स लोकेटेड एट द, दिस इज अ सर्च बॉक्स लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ लेफ्ट pane. But in my laptop Windows 10 is installed and Windows 10 type you can see here in my computer at the bottom, that is in the taskbar you can see the type here to search, that is the, I can directly search from here. I have to just click on here, and if I want to search Tux Paint, so I am writing only T, you can see the Tux Paint option is showing. Okay, from here I can just click on it, open file location, and I can choose any option to do any other task, okay, to perform any other task. And from here I can search any files, any folders, any program, any software. डॉक्यूमेंट सर्च करना है तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्लिक करूँगी, देन मैं यहाँ पे मानसून, अभी मुझे नो फाइल बताएगा, प्रीव्यू फॉर मानसून इजंट अवेलेबल राइट नाउ बिकॉज मैंने ऑल में किया है, मैं डॉक्यूमेंट्स में देखूंगी. यू कैन सी दैट, मैं ओपन में क्लिक करती हूँ, यू कैन सी द 2 PDF फाइल आई गेट फ्रॉम द नेम मानसून. ओके, तो जो भी मानसून से रिलेटेड थी यहाँ पे फाइल वो मुझे यहाँ पे मिल रही है. अंडरस्टैंड? So like that you can search any files and folders, any program, any software from your search box. Type either a part of the file and folder name or complete name, or type a word or phrase that is present in the file. Okay. Also you can type, you can see this is a Word file. Okay. And I am opening this file. It will take a little time to open. So shall we wait for it? Here you can see at the top Delhi World Public School is written. Okay. So if I want to search any file that contain Delhi, the word contain मतलब वो फाइल जो है दिल्ली वर्ड को कंटेन करके रखी होनी चाहिए, मुझे ऐसी कोई फाइल सर्च करनी है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं फर्स्ट इसको क्लोज कर देती हूँ. यहाँ पे मैं गई, टाइप हियर टू सर्च, यहाँ पे मैंने दिल्ली टाइप किया. ठीक है, सो अब मुझे कौन सी फाइल शो कर रही है, इंग्लिश की, क्योंकि दिल्ली मैंने टाइप किया और दिल्ली वर्ड इस इंग्लिश फाइल के अंदर है. ठीक है, सो यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा था, as you type the items that matches your text will appear on the start menu. No. Second point देखना, type either a part of the file and folder name or complete name, or type a word or phrase that is present in the file. So I am writing here Delhi. I have written Delhi, and Delhi is the word which is present in the English file. Okay. So as I opening this file again, you can see we will get the same file Delhi which contains the word Delhi. Okay. So like that you can search any files, any folders from the search box. As you type, now see the next line. As you type the items that matches your text will appear on the start menu. जो भी यहाँ पे ये जो हम जैसे टी टाइप किया, जो भी मैच होता है, दिस इज अ स्टार्ट मेन्यू, वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाता है. ये विंडोज 10 का है, विंडोज 10 का विंडोज 7 में थोड़ा अलग वे पे दिखाई देगा. ओके, एंड विंडोज 10 में, अभी ये विंडोज, ठीक है, 10 था. देन सेलेक्ट द डिजायर्ड फाइल एंड फोल्डर, इट विल ओपन अ न्यू विंडो. As you select any files and folders, it will open a new window like this, and click on the see more result link to get detailed list of searched file and folders. The search results window will open. Now simply click on a search result file and folder to open it. So Windows 10 में ये ऑप्शन सर्च रिजल्ट ऑप्शन नहीं है, अवेलेबल होता है. जैसे मैंने टक्स टाइप किया तो यहाँ पे मेरे पास है ओपन या और ओपन फाइल लोकेशन. सो आई एम ओपनिंग दिस ओपन फाइल लोकेशन. मुझे पता चल रहा है कि कहाँ पे मैंने जब टक्स पेंट को डाउनलोड किया था, तो टक्स पेंट जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पे आके डाउनलोड हुआ था,
दिस पीसी में विंडोज सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम डाटा के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, विंडोज के अंदर, स्टार्ट मेन्यू के अंदर, ओके, स्टार्ट मेन्यू के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर टक्स पेंट सॉफ्टवेयर है. सो दिस इज द कंप्लीट पाथ ऑफ दिस फाइल, दिस software. Understand? So this is a path name. From here, like that, you can search anything. Okay. Here, see, in case you know only a part of the file name, you can use wildcard characters to locate all files or folders that contain that part in their names. Asterisk and question mark are two wildcard characters commonly used in searching information. Okay. In case you know only a part of the file name. Okay. जैसे कि मुझे कोई फाइल सर्च करनी है, ये मैं यहाँ पे, इसका फीचर आपको यहाँ अंदर वाले सर्च बॉक्स में होगा. ठीक है, ये ई है. जैसे कंपटीशन नाम के फोल्डर के अंदर मुझे कुछ सर्च करना है. ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे कुछ सर्च करना है. यू कैन सी ऑन योर बुक पेज नंबर 30. Asterisk means any type and number of characters in its place. For example, L asterisk dot asterisk will search all files whose name start with L, followed by any number of characters and have any extensions. Example, letter.docs, lottery.pptx, locality.txt and so on. ठीक है, अगर मैं कोई फाइल है, जैसे कि ए करके लिखा है मैंने. ठीक है, ए करके लिखा, देन ए एस्ट्रिक, आई टाइप्ड हियर एस्ट्रिक, देन डॉट, देन अगेन एस्ट्रिक. As I'm select and click on the select, you can see ए नाम से जितनी भी फाइल है एप्रिशिएशन, चाहे वो पीडीएफ की फाइल हो, चाहे वो वर्ड फाइल हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, मतलब हर फाइल का अलग अलग एक्सटेंशन होता है. डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन .docx होता है. इमेज जो फोटोज होती है, पिक्चर्स होती है, वो जेपीईजी में होती है. ठीक है, तो पीडीएफ का .pdf अलग अलग एक्सटेंशन होता है अलग अलग फाइल्स के लिए. सो इफ यू आर यूजिंग दिस एक्सटेंशन, दिस टाइप एस्ट्रिक ऑप्शन लाइक दिस, so you will get all the files with all the that are started with the A, कैरेक्टर A. मैंने यहाँ पे A लिखा है, तो A से जो भी फाइल्स, इमेजेस, जो भी नेम है वो कंटेन करके रखा है, या फिर जो उस फाइल से स्टार्ट होती है, जैसे अक्षत, आराध्या, एप्रिशिएशन, 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 एप्रिशिएशन एफ. तो ये जितनी भी फाइल है जो A से स्टार्ट होती है, इट विल बी, तुम यहाँ पे उसको देख सकते हो, यहाँ पे वो सेलेक्टेड हो चुकी है. और इनके सबके एक्सटेंशन अलग है. ये इमेज फाइल है, ये पीडीएफ फाइल है, ये वर्ड फाइल है, यू कैन सी. ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे देखना, पेज नंबर 30 में ही एस्ट्रिक के फॉर एग्जाम्पल में, इफ यू आर राइटिंग एस्ट्रिक देन डॉट देन docx, you can see all the documents file. Okay, we'll search this statement asterisk dot asterisk then dot then docs, will search for all the files whose extension is .docs, word files. ये जो है जिसका भी एक्सटेंशन .docs होगा, यानी जितनी भी वर्ड फाइल हमको सर्च करनी है उसके लिए हम ये यूज करेंगे. ठीक है, अब देखो लास्ट लाइन, L asterisk dot docs will search for all the files whose name begins with the letter L and have the extension .docs. Okay, अब मुझे कोई डॉक्यूमेंट फाइल सर्च करनी है. ठीक है, मुझे पता है कि डॉक्यूमेंट फाइल सर्च करनी है और वो होनी चाहिए मानसून, मतलब कि उस फाइल का मैंने नाम लिख दिया एम, वो एम से स्टार्ट होती है. एम, मुझे पूरा नाम नहीं पता है तो मैंने एम लिखा, देन एस्ट्रिक. अब मुझे पता है कि हाँ वो वर्ड पे अवेलेबल है, मैंने एम लिखा, एस्ट्रिक लगाया, देन डॉट docx. देखो यू कैन सी एम से फाइलें स्टार्ट हो रही है और ये सारी की सारी वर्ड फाइल्स है. ठीक है, यू कैन सी दिस ऑल आर दिस वर्ड फाइल्स. ठीक है, ये सारी की सारी कौन सी फाइल्स है, वर्ड फाइल्स है, और सारे के नेम्स किससे स्टार्ट होते हैं, कौन से कैरेक्टर से, लेटर से, एम से. ठीक है, तो ये हाउ टू यूज दिस एक्सट्रिक ऑप्शन टू सर्च एनी फाइल्स एंड फोल्डर्स. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा.
Now you can see the next topic, that is question mark means any one character in its place. मतलब कि एस्ट्रिक का मतलब क्या था, एस्ट्रिक क्या, एस्ट्रिक मीन्स एनी टाइप एंड नंबर्स ऑफ कैरेक्टर इन इट्स प्लेस, यानी कि इस एस्ट्रिक के प्लेस में कितने भी फाइल्स और कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम यूज हो सकते हैं. लेकिन अगर मैं कोई फाइल सर्च करती हूँ लाइक दैट, मैं यहाँ पे कोई भी फाइल सर्च करती हूँ जैसे कि मानसून, ठीक है, मानसून. अब मानसून नाम से बहुत सारी फाइलें हैं, तो मैंने यहाँ पे मानसून क्वेश्चन मार्क लगाया है, ठीक है. देन क्वेश्चन मार्क एंड डॉट डॉक्स, DOCX. सो मानसून के नाम से जो भी फाइलें होंगी वो मुझे यहाँ पे दिखेगी. शायद यहाँ एक भी फाइल नहीं है. वेट मानसून 1, मानसून 2, मानसून 3. ओके, मानसून, देन क्वेश्चन मार्क, देन डॉट, देन DOCX. Working on it. Okay, let's see the result. So this will search for all the files whose name begins with मानसून followed by any one character. ठीक है, उसके बाद सिर्फ वन कैरेक्टर होना चाहिए. एंड एक्सटेंशन इज डॉट, उसका एक्सटेंशन जो होगा वो डॉट डॉक्सी होगा. ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ कि क्वेश्चन मार्क डॉट एस्ट्रिक विल सर्च ऑल फाइल्स हुज नेम कंटेन्स ओनली वन कैरेक्टर एंड हैव एनी एक्सटेंशन, तो मेरे पास ऐसी कोई भी फाइल नहीं जिसका एक ही एक्सटेंशन हो. तो ये अभी ओपनिंग होने में बहुत टाइम ले रहा है. ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम एक क्रिएट करते हैं एक ऐसी फाइल जो जिसका नेम जो होगा वो सिर्फ वन कैरेक्टर का होगा. ठीक है, यू कैन सी क्वेश्चन मार्क डॉट एस्ट्रिक विल सर्च ऑल फाइल्स हुज नेम कंटेन ओनली वन कैरेक्टर एंड हैव एनी एक्सटेंशन, और उसका एक्सटेंशन कुछ भी होगा. वो डॉक्स का एक्सटेंशन भी हो सकता है, वो पावर पॉइंट भी हो सकता है, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ओके, सो आई एम क्रिएटिंग हियर डॉक्यूमेंट फाइल, न्यू फाइल. I am writing here anything and save this file as one character. Save as, click on save as and desktop पे ही हम इसे सेव कर लेते हैं. मैं इसे नेम दे देती हूँ F. ओनली एक नाम दिया मैंने, वन कैरेक्टर दिए F. ये हो गई सेव. ठीक है, अब मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ दिस PC पे जाके F, मतलब अब मुझे F नहीं लिखना है, F से तो हमको पता है. अभी मुझे क्वेश्चन मार्क डॉट एस्ट्रिक लगाऊंगी. इसका मतलब जो भी फाइल जिसका एक्सटेंशन, ठीक है, जो फाइल जिसको हमने रीनेम किया है सिर्फ ओनली वन लेटर से, वो फाइल हमको यहाँ पे सर्च होके सेलेक्ट होके मिलेगी. ठीक है, मेरे लैपटॉप में एंटीवायरस नहीं है और बहुत सारे वायरस इसमें अटैक हो रहा है, so that's why it is taking a time, lots of time. So students, you can see this file, F file. Okay, so उस टाइम मैंने फाइल कहाँ पे सेव की थी, डेस्कटॉप पे सेव की थी. अभी मैंने इसे कट करके वहाँ से इसे क्लास 5th के अंदर ला के रखा है. ठीक है, क्लास 5th फोल्डर के अंदर, और क्लास 5th फोल्डर के अंदर जब मैं इसे क्वेश्चन मार्क डॉट एस्ट्रिक लिख रही हूँ, यू कैन सी द F नाम से जो हमने सिंगल कैरेक्टर यूज़ किया था इस फाइल को सेव करने के लिए, वो फाइल सबसे फर्स्ट टॉप पे हमको दिख रही है. ठीक है, जब मैं इसे मूव करती हूँ यहाँ से एक नॉर्मली फाइल दिख रही है, लेकिन जो सारी फाइल्स इस सीरीज में दिख रही है.
बट जैसे ही मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क डॉट एस्टिक इस वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज़ करके इस फाइल को सर्च करते, यू कैन सी द फर्स्ट फाइल that will started that will contain that name contain only one character. Okay, so this is about how to use that wildcard characters to search any files and folders. Understand every student? Very good. You can also find a folder by clicking the search box at the top of the open windows in a particular folder or library. Search such as document, picture, music, videos, and then typing the relevant keywords or text. Okay, now see the next topic, that is customizing the desktop. Customizing the desktop means you can Windows is a very flexible software and provides options to change the settings of desktop according to your choice. Understand? You can change the settings of desktop, you can customize your desktop, you can redecorate your desktop according to your choice, according to your minds of creativity. Understand? Follow the steps to change the color scheme, color theme of the computer screen. First, right clicking on the blank area of the desktop and select the personalize option. The personalization windows appears. Okay, it is the blank area of this desktop screen, and here I am right clicking on it. You can see at the last bottom at the bottom side you can see the personalize option. So I am clicking on it. Personalize option. Wait. So this is, so when you will clicking on the personalized option, this screen will open. So it will open in Windows 10, and you can see on your on your book page number 31. The screen will open like that as shown in your book. If you are using Windows 7, if you are using Windows 10, then this screen will appears like this. Understand? From here you can change the colors. Okay, click on the window color option located at the bottom of the window. Select any color to change the window border, start menu and taskbar. तो ये विंडोज 10 है मेरे में. विंडोज 7 में भी विंडो कलर करके ऑप्शन होता है टॉप बॉटम साइड पे. सो फ्रॉम हियर यू कैन सेलेक्ट. सो मैं आपको विंडोज 10 में बता रही हूँ, दोनों में फीचर में सेम है, सेम ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं. बस ये है कि विंडोज 10 का अपीयरेंस थोड़ा लुकिंग इसकी अलग है और विंडोज 7 का अपीयरेंस अलग है. ठीक है. सो हियर यू कैन सी द कलर्स ऑप्शन. हियर इज यू कैन सी द स्पेलिंग ऑफ COLORS. कंप्यूटर में जो कलर की सेटिंग्स वाली स्पेलिंग्स होती है वो COLOR होती है. ठीक है, कलर होती है, not COLOUR is wrong in the terms of computer. Okay, so colors, यहाँ पे मैंने colors को select किया. You can see the custom color. Choose your default windowed mode. जैसे मैं अभी लाइट यूज़ करूँगी तो ये you can see the differences. टास्क बार पे सब चीज़ लाइट हो चुका है. यहाँ पे देखो बैकग्राउंड पे सब लाइट हो चुका है. देखो डार्क सेलेक्ट कर रही हूँ, ये पूरा डार्क हो गया, ब्लैक हो गया, टास्क बार पे ब्लैक हो गया. अब मैं यहाँ पे अगर चूज़ योर डिफ़ॉल्ट ऐप मोड में क्लिक किया तो पूरा का पूरा एरिया ही डार्क हो चुका है. ओके, फ्रॉम हियर यू कैन सेलेक्ट द कस्टम सेटिंग्स. कस्टम, you can directly dark, you can directly light by clicking on light option. By clicking on dark option you can change the settings of your window. Dark, you can see the differences. Here you have one options, that is transparency effect. So enable this option, and from here you can choose any color of your choice. So this is about your customized desktop settings. From here you can choose any color, any of your choice to change the settings, to change the appearance of your desktop screen. Understand? Also you can select this custom color option, and here you can choose any color of your choice. Understand? Like that you can select.
Now see the show accent color on the following surfaces. Start, taskbar and action center. As I am selecting this option, you can see the changes. Title bars and windows border. ओके सो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यू कैन सी द टास्क बार भी पूरा पिंक कलर का हो चुका है. टाइटल बार्स एंड विंडोज के जो बॉर्डर्स होंगे वो भी पूरे क्या होंगे, पिंक कलर के होंगे. यू कैन सी पूरा का पूरा बॉर्डर, पूरा बैकग्राउंड पिंक कलर का हो गया है. ये फोल्डर ओपन करके देखते हैं. यू कैन सी डार्क मोड पे है हमारा कंप्यूटर. ऑल्सो जो इसका ऊपर का टॉप मेन्यू है वो भी पिंक कलर का हो चुका है. ठीक है, ये पूरा डार्क मोड पे चला गया. तो ये इसकी इस टाइप से आप अपने विंडो का, अपने कंप्यूटर का अपीयरेंस जो है वो आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस सेटिंग इज प्रोवाइडेड बाय द विंडोज 7 ऑनवर्ड्स. विंडोज 7 के बाद से जितने एडिशंस आते गए, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, उसमें धीरे धीरे सेटिंग्स जो है वो सारी की सारी अप्लाई होती गई. अंडरस्टैंड एवरी स्टूडेंट. तो चलो इसे वापस से अपने मोड पे रख देते हैं जैसा कि ये पहले था. ब्लू कलर सेलेक्टेड था, इसे अनचेक कर देते हैं. मेरा पीसी थोड़ा हैंग हो रहा है बिकॉज इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है अभी. यू कैन सी सब चीज़ डार्क हो चुका है क्योंकि हमने सेटिंग्स में जाके डार्क मोड पे रखा हुआ है. ठीक है, सो पर्सनलाइज ऑप्शन में फिर से जाते हैं. मैंने कलर चेंज कर दिया था इसलिए कलर यहाँ पे इस तरीके का है. इसे वापस से अपने मोड पे किया जाए. फ्रॉम हियर यू कैन चेंज यू कैन ऑल्सो चेंज द बैकग्राउंड, यू कैन चेंज द थीम्स, यू कैन चेंज द फॉन्ट. ओके, एंड यू कैन अप्लाई द लॉक स्क्रीन पासवर्ड. यू कैन अप्लाई द पासवर्ड ऑल्सो. मैं यहाँ पे इसे कस्टम सेटिंग में कर रही हूँ जैसे कि ये पहले था, बिकॉज आई एम फैमिलियर विद द कस्टम सेटिंग्स ऑफ दिस माई पीसी. ठीक है, तो मैं आपको पहले जैसा करके भी बता रही हूँ कि अगर आपने कुछ घर में प्रैक्टिकल करते करते गड़बड़ी कर दी सो आप उसे कैसे अपने मोड पे रखेंगे वापस. ठीक है, ये लाइट रहेगा, लाइट एंड डार्क. ओके, ओके, सो ये इस तरह से आप अपने डेस्कटॉप का अपीयरेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं. आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर यू हाउ टू चेंज, हाउ टू रीडेकोरेट, हाउ टू रिनोवेट योर डेस्कटॉप स्क्रीन. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज desktop gadgets. Desktop gadgets. Windows contains mini programs called gadgets which offer information at a glance and provide easy access to frequently used tools. Windows 7 gadgets are calendar, clock, CPU, meter, currency, weather, feed, headlines, slideshow, picture, puzzle, window media center and WinZip. So to adding these gadgets you have to just right click on the blank area of the desktop and you will find this gadgets option in Windows 7 only. Okay, Windows 7 में ही ये options है. From there you can see the right click on the blank area of the desktop and select the gadgets option from the context menu. The gadgets gallery windows open. So this is the gadgets gallery windows screen. Double clicking on the gadgets that you want to place on the desktop. अगर आप ये क्लॉक है इसको आप डेस्कटॉप पे प्लेस करना चाहते हैं कहीं पे भी तो जस्ट इस पे आपको डबल क्लिक करना होगा, ये वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा. द सेलेक्टेड गैजेट्स गेट प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द डेस्कटॉप. और ये जो सेलेक्टेड गैजेट्स होंगे वो कहाँ पे पेस्ट होंगे, राइट साइड पे होंगे. तो ये जो फैसिलिटी है ये ओनली विंडोज 7 में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट है. ठीक है, बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट है. और ऑल्सो यू कैन डाउनलोड मोर गैजेट्स बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गेट मोर गैजेट्स ऑनलाइन. तो ऑनलाइन भी आप यहाँ से, यहाँ पे लिंक दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप बहुत सारे गैजेट्स ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. बट विंडोज़ 10 में बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये विंडोज़ गैलरी प्रेजेंट नहीं मिली है, मतलब नहीं रहती है. if I want to use some gadgets in Windows 7, Windows 10, if you want to use some gadgets on your desktop and you are using Windows 10 operating system, then you have to go to the internet and you have to download these gadgets from the internet. So I will show you how to download this software. So first I am connecting my PC with the internet.
So I can download these gadgets, but I will show only how to download, but I'm not downloading yet because that time, as you know, in my laptop there is no any antivirus software is present. So my PC is connected with the internet. अगर आपके मैंने पढ़ाया था आपको सॉफ्टवेयर में कि अगर आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं और आप इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ साथ आपके पे वायरस अटैक्स भी होते हैं आपके पीसी पे, है ना. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डाउनलोडिंग दिस सॉफ्टवेयर, बट आई एम शोइंग यू हाउ टू डाउनलोड, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं. सो यू हैव टू टाइप Windows 10 gadgets, you can see, and you have to select any link. So you can select this link, Windows gadgets, free desktop gadgets for Windows 10. So you, by selecting, you can see a new screen will open. Here you can see the many gadgets, and you can download this package. ये पूरा पैकेज डाउनलोड होगा, ठीक है. इसमें जितने भी आपके पास डाउनलोड होंगे सॉफ्टवेयर वो सारे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है. मैंने आपको बस वेबसाइट के नेम बता दिया है. देर इज़ नो नीड टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट, फ्री डाउनलोड, फ्री डाउनलोड, फ्री डाउनलोड. यू कैन डायरेक्टली सेलेक्ट एंड क्लिक. ओके, अमेजन वेदर, फ्रूटी क्लॉक एंड द मैजिक फोल्डर, नेटवर्क ट्रैफिक आप पता कर सकते हो. ये सारे के सारे फ्री गैजेट्स है, यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड, बट आई एम नॉट डाउनलोडिंग येट, and because this site is also not secured, you can see here it is not secured. Okay, so I'm not downloading this software, but you can download these gadgets from the internet. Okay, so this is about your chapter number 3, and that is enough for today, and here your chapter 3 is completed. In our next video I will show you the exercise portion, recap of the chapter and fill in the blanks. जो भी है ये हम आगे कवर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में. सो दैट इज इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स. एंड इससे रिलेटेड, चैप्टर 3 से रिलेटेड, इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन माई जूम लेक्चर. ओके, आप पहले वीडियो देखिए, जो भी आपको डाउट रहता है, एक नोटबुक लीजिए, एक पेन लीजिए, उस पर आप रिमार्क कीजिए कि हाँ मुझे ये डाउट है, मुझे इस दिन मेरी जूम क्लास है कंप्यूटर की, मुझे मैम से ये डाउट पूछने हैं, ठीक है. जब तक आप डाउट पूछेंगे नहीं आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, और अगर आप मुझसे डाउट नहीं पूछेंगे मेरे को लगेगा बच्चों को सब समझ में आ रहा है, ठीक है. सो डाउट सिर्फ 2 लोगों को नहीं आता है, जिनको या तो सब कुछ समझ में आता है या फिर जिनको कुछ भी नहीं समझ में आता है, ठीक है. तो अगर आप दोनों कैटेगरी में भी हो सकते हो तो मुझसे डाउट पूछो. जूम लेक्चर रखा गया है सिर्फ ओनली फॉर द डाउट सेशन, सो यू कैन आस्क मी द डाउट, वॉट एवर द डाउट हैव यू. ओके, सो जो भी डाउट्स होगा आप प्लीज़ मुझसे पूछिए जूम में और कंसल्ट कीजिए. और मैं जूम में कभी भी सरप्राइज ओरल टेस्ट ले सकती हूँ. तो प्रीवियस जो भी टॉपिक है, इनपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, आउटपुट डिवाइसेस, जो भी टॉपिक है प्रीवियस सेशन के, वो आप पढ़ते रहिए, रीड करते रहिए, ठीक है. Understand? So that is enough for today students. Bye, take care.